Welcome to my channel. Today we are going to talk about Pisces Ascendant and the predictions for the month of September 2023. So for your ascendant, the ascendant lord Jupiter is going to continue to transit through the second house and it is going to get associated with Rahu in the second house. So this month is all about how well you associate yourself with spirituality and make progress in the same domain. This is not a great time for materialistic pursuits, and your ascendant people have their own interpretation of spirituality, and you can progress a lot in spirituality compared to other ascendants because Pisces is the last ascendant. It shows the feet of human body and it shows moksha or liberation from the human body, and that is why the Pisces ascendant people are naturally associated with spirituality. In the month of September, you are going to experience issues with your family, and these differences of opinion are going to continue till the end of October. Presence of Rahu in the second house means that a certain kind of an illusion is going to be created with your family members, and you need to be extremely careful about what you communicate with them, especially in the month of September, because your speech itself is going to cause a lot of differences with your family. Jupiter is also the lord of profession, and all those who are involved in jobs that involve traveling, these people will have a good time in the month of September. But overall, this is not a great time for all those people who are in service or jobs, and you should specifically avoid arguments at your workplace between 25th to 27th of September. Venus is going to be present in your fifth house in the month of August. Venus was retro position and present in the same house, and it is going to turn direct in September. So this will be considered very good for people who are artists or who are involved in the areas related to fashion designing or any work that involves creativity and luxury. If you're a student, then best time to appear for any kind of a competitive exams is at the beginning of the month, which is on 1st and 2nd of September, and then again at the end of the month on 29th and 30th of September. These 4 days are very conducive as far as clearing any kind of a competitive exams is concerned. Venus is also the owner of your eighth house, and the eighth house lord transitioning through the fifth house would mean that you should stay away from speculation in the month of September, otherwise, you will certainly lose money. Venus is a natural significator of fun, and although Venus dominated people want to enjoy their life, your ascendant naturally falls in the space of enjoyment because Venus gets exalted in the sign of Pisces. And here also, Venus is present in a full water sign where it is extremely comfortable. So in the month of September, you need to be very careful that you are not enjoying too much and you are not putting your body at risk, because our body also has a certain kind of limitations. Venus is also about attraction with opposite people or gender. So this is the best time for romance, and the most favorable time in the month of September for any romantic pursuits is between 5th to 7th of September. Your ascendant people usually have very oversensitive kids, and controlling emotions is a major issue for them. Since Venus is present in the fifth house, your kids would also like to enjoy their life in the month of September, and again, a difference of opinion is going to get created with your kids, but it is not a great time to argue with them, and you will do well if you don't get into conflicts with your kids, especially between 13th to 19th of September. For this month, Mercury is going to be transitioning through the sixth house, and it is going to be present here throughout the month of September. Mercury is the owner of seventh house for you. Seventh house indicates spouse and business partnerships. Further, Mars is also going to be present in the seventh house, which means that your spouse is going to take a very straightforward approach and will behave very aggressively with you.
Further, the seventh house lord present in the sixth house would mean that this month is not going to be a great time as far as marriage is concerned, and this is also not a very good time to get married. So all those people who are single, they should wait, and in the month of September they should not try to get hitched. Anyways, the combination itself is not there, but marital harmony is also going to remain disrupted for people who are already married. The sixth house lord sun is going to be in its own sign till 16th of September. So people in jobs will have a relatively better first half of September compared to second, and the best time to shine at the workplace will be between 6th and 9th of September. But overall, this is a moderate month as far as the jobs progress is concerned. Now, there are also certain days where you need to remain cautious, and these are the dates when moon passes through your 6th, 8th, and 12th house. So, for you, the days where you need to remain cautious in this month of September are 13th and 14th of September, 18th and 19th of September, and 27th and 28th of September. Just be cautious and avoid taking any key decisions during these 6 days. So overall, this month is a little bit stressful time for you as far as the marriage is concerned. But if you walk on the path of spirituality, because spirituality is something that comes naturally to the Pisces ascendant people, then you will be able to progress a lot in this arena, and this will lead to great gains for you in this month. So that's the summary for you for September. If you have liked my video, I would request you to subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मीन लग्न वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम लग्नेश की बात करते हैं तो लग्नेश गुरु इस महीने में भी राहु के साथ द्वितीय भाव में बैठे रहेंगे। तो ये महीना आपके लिए स्पिरिचुअलिटी में या अध्यात्म में तरक्की करने का समय है। आपके लग्न के लोग वैसे भी आध्यात्म में प्रगति करने में काफ़ी विख्यात होते हैं, क्योंकि जो मीन लग्न है वो आपके पूरे राशि चक्र में आखिरी लग्न कहलाता है। यह मनुष्य के शरीर में भी उसके पाँव को दिखाता है और जीवन की आखिरी स्टेज को दिखाता है। तो आपके लग्न के लोग वैसे भी अध्यात्म में नेचुरली प्रगति करने के हिसाब से बने होते हैं। तो सितंबर का महीना इसी आध्यात्म में अपने आप को प्रगति के पाथ पर डालने का है, और ये मटेरियलिस्टिक समय नहीं है। यानी अगर आप पैसे कमाने के पीछे भागेंगे या सारे सुख संसाधनों के पीछे भागेंगे सितंबर के महीने में, तो उसके लिए ये महीना आपको कुछ फेवर नहीं करता। आपके आध्यात्म के अपने स्वयं के इंटरप्रिटेशंस होते हैं, और इसीलिए आप लोग काफ़ी प्रगति कर पाते हैं। दूसरों का बोला हुआ आप नहीं मानते। आप जब तक खुद उसको जांच परख नहीं लेते, तब तक आप अध्यात्म में भी चीज़ों को नहीं मानते हैं। सितंबर के महीने में आप अपने परिवार वालों के साथ किसी तरह के मतभेद में पड़ जाएंगे, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठा हुआ है, और राहु जहाँ पर भी बैठता है वहाँ पर लोगों के रिलेशनशिप्स में वो गलतफहमियाँ क्रिएट करने का कार्य करता है। तो आपके अपने परिवार वालों के साथ जो भी मतभेद होंगे वो मूलतः आपके बोलने की वजह से होंगे। इसलिए आप अपने परिवार वालों के साथ क्या बात करते हैं ये आप काफ़ी ध्यान पूर्वक बोलिए, और सितंबर और अक्टूबर के महीने में भी इस बारे में सावधान रहिए, क्योंकि ये राहु यहाँ पर बैठकर एक मृग तृष्णा का निर्माण करता है, और यहाँ पे आपके परिवार वालों के साथ आपकी गलतफहमियों को बढ़ाने का काम करेगा। गुरु आपके लिए आपके प्रोफेशन के भी कारक बनते हैं, और वो द्वितीय भाव में बैठ के नवे दृष्टि से अपने ही स्थान को देखते रहेंगे। तो जितने भी लोग सेल्स में हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स में हैं, या ऐसे किसी भी जॉब में है जहाँ पे व्यक्ति को बहुत घूमना पड़ता है, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। नहीं तो ओवरऑल अगर आप जॉब के हिसाब से देखेंगे तो ये महीना कुछ खास अच्छा नहीं है। और सितंबर की द्वितीय हाफ में खास करके 25 से 27 सितंबर के बीच में आपको अपने कार्यस्थल पर किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। आपके लग्न के लिए शुक्र पंचम भाव में बैठे रहेंगे और ये मार्गी हो जाएंगे अक्टूबर के सितंबर के महीने में। अगस्त के महीने में भी शुक्र यहीं बैठे हुए थे, लेकिन ये उस समय वक्री थे। तो शुक्र का मार्गी होना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि कलाकार हैं, शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, या किसी भी तरह के ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसका संबंध लग्जरी से आता है। तो उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। बाकी लोगों के लिए महीना कुछ खास नहीं है। अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए
सबसे अच्छा दिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उतरने के हिसाब से महीने के शुरू में है 1 और 2 सितंबर, और उसके बाद 29 और 30 सितंबर, ये 2 दिन भी बहुत अच्छे हैं अगर आप किसी भी तरह के परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो। शुक्र आपके लिए अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं और अष्टमेश का पंचम स्थान से भ्रमण, यानी कि अगर आप शेयर बाजार से संबंध रखते हैं तो इस महीने में आप दूर रहिए, नहीं तो आपको स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा नुकसान होने की बहुत भारी संभावना है। शुक्र का संबंध मौज मजा और मस्ती के साथ आता है, तो आप में से जितने भी लोग इस समय में मस्ती और बनना चाहेंगे उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने शरीर का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि शरीर की भी एक सीमा होती है और अगर आप अपने को ज़रूरत से ज़्यादा एग्जर्ट करेंगे तो इस महीने में आपके बीमार पड़ने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है। शुक्र का संबंध रोमांस से आता है, अट्रैक्शन से आता है, और ये व्यक्ति के अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन को दिखाता है। तो रोमांस की दृष्टि से 5 से 7 सितंबर का समय इस महीने में सबसे अच्छा है। चूंकि आपके पंचम भाव में कर्क की राशि पड़ती है और कर्क एक पूर्ण जल राशि है, इसका संबंध व्यक्ति की भावनाओं के साथ आता है। तो आपके लग्न के बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और इस समय में भी शुक्र चूंकि पंचम भाव में बैठा है तो आपके बच्चों का भी एटीट्यूड जीवन को एंजॉय करने की तरफ होगा, जिसकी वजह से आपके साथ उनके मतभेद हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपने बच्चों के साथ आर्ग्यूमेंट में मत पड़ें। खास करके 13 से 19 सितंबर तक का समय ऐसा है जब आपको अपने बच्चों के साथ किसी भी तरह का वाद विवाद टालना चाहिए। ये महीने में आपके सप्तम भाव में मंगल बैठा रहेगा, तो मंगल का सप्तम भाव में बैठना अपने आप में ही व्यक्ति की शादीशुदा जिंदगी में या बिजनेस पार्टनरशिप में तनाव को दिखाता है। लेकिन इसके अलावा सप्तमेश भी छठवें भाव में बैठा हुआ है, तो ये एक तरह की डबल वहमी जिसको आप बोल सकते हैं वो हो रहा है। और यहाँ पे जितने भी लोग शादीशुदा हैं उनके शादीशुदा जीवन में सितंबर के महीने में डेफिनेटली तनाव रहेगा। आपका जो भी पार्टनर है या स्पाउस है वो आपके प्रति बहुत अग्रेसिव तरीके से बिहेव करेगा और बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट गोचर तरीके से बात करेगा, जिसकी वजह से आपको तकलीफ होगी। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी आपको सावधान रहना पड़ेगा और बिजनेस पार्टनर के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना पड़ेगा। जितने भी लोग सिंगल हैं उनके लिए ये समय कुछ खास अच्छा नहीं है और इस महीने में शादी होने के कोई योग नहीं दिखते हैं। चूंकि आपके लग्न के लिए सूर्य अपनी ही राशि में बैठे रहेंगे 16 सितंबर तक, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए सितंबर का पहला हाफ ज़्यादा बेटर है बनिस्बत सेकंड हाफ के, और पहले हाफ में भी 6 से 9 सितंबर का समय फिर भी थोड़ा ठीक है नौकरी में या धंधे में इम्प्रूवमेंट की दृष्टि से अगर आप देखें तो। अब हर महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आपको सावधान रहना पड़ता है, और सितंबर के महीने में जब आपको सावधान रहना है वो दिन है 13 और 14 सितंबर, 18 और 19 सितंबर और 27 और 28 सितंबर। इन 6 दिनों में आप बिल्कुल सावधान रहिए और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना टालिए। देखिए, महीना आध्यात्म में प्रगति करने के हिसाब से तो बहुत ही शानदार है और आपको उसी लाइन पे ट्राई भी करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा मटेरियलिस्टिक परसूट की अगर हम बात करें तो ये महीना कुछ खास अच्छा नहीं है। तो जो भी लोग इन चीज़ों के पीछे भागेंगे, सांसारिक मोह माया के पीछे, उनके लिए महीने में तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और आपके मैरिड लाइफ में तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सप्तमेश का छठवें भाव में बैठना और मंगल का सातवें भाव में बैठना, यानी कि ये आपके शादीशुदा जीवन में डेफिनेटली तनाव दिखाता है। तो जितने भी लोग आध्यात्म की तरफ जाएंगे इस महीने में उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है, अदरवाइज फिर ये तनाव भरा समय है। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।